Good morning, everyone. In the last class, I did started talking about geometric progression, and that all happened offline in the classroom when I did talk about the basic idea of the geometric progression. So the GP was introduced as the common ratio of the terms as same, followed by the first term as A, common ratio as R, general term AN, and the questions like this. So these are already being discussed. So you can have a quick look at the following questions. So these were all covered in the yesterday's class in the school. One or two questions may be a little bit different, the numerical values, but the idea is exactly the same. Then we did talk about the simple GP, and then general term of GP as AN is given by A R power n minus 1, और GP क्या है? AR square, AR cube, करते करते it is AR power n minus 1 as the nth term. So 10th term, for this direct formula applied. Which term of GP is this? We did consider exactly the same question. Which term of this GP is this? Now think logically. Let me quickly talk about this question here. One can note first term is root 3, and what is my common ratio? 1 by root 3 by root 3. Second term divided by first term कर दो. So this is basically equal to 1 by root 3 into 1 by root 3, which is 1 by 3. So make it sure you calculate R correctly. That's the basic idea. Or थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म कर दो, तब भी यही आना चाहिए 1/3. सो आई हैव ए विद मी एंड आर विद मी. अब कह रहे हैं विच टर्म इज दिस? सो लेट nth टर्म इज दिस 1/729√3, और nth टर्म का मतलब ये हो गया. nth टर्म होती है ARn-1. So that's a basic formula, and now I substitute the values of A and R. R is 1/3 and power n-1. 729 into root 3. So now everything you need to convert into the powers of 3 only. So look carefully, this root 3 will come to right hand side, and this will give me 729 into 3, because root 3 into ये वाला root 3 दे देगा, और 1/3 की पावर n-1 will become 729 into 3 कितना हो गया? वैसे तो हमें इसको फैक्टराइज ही करना है, तो लेट मी राइट दिस एज इट इज. और अब 729 के हम फैक्टर कर देंगे इन टर्म्स ऑफ 3 ओनली. सो 3 के मल्टीपल से यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. सो दैट यू कैन डू सो इजीली, प्रोवाइडेड स्टार्टिंग में ए आर और nth का फॉर्मूला सही लिख लिया. Find the sum to n terms and sum to 5 terms. Same question we discussed in the class. Again, exactly the same question was discussed already in the class yesterday. And this question was also considered in the class. Sum of first 3 terms of GP is given and their product is given.
Remember, if the product of three terms is given, then take the numbers as A by R, A and AR. Learn this. जैसे AP में होता था A minus D, A and A plus D. GP में if the product is given, then I will take A by R, A and AR. So check out this question in your homework. Solved example ही है book का. And 9.3 first 10 questions were given as in your homework. So these are very basic questions. First तो चलो direct है. Let me talk about second question. Okay, anyway, before I move in, please mark your attendance. Everyone in the chat box. Okay, so check this out. Find the 12th term of GP whose eighth term is 192 and the common ratio means R is given as 2. With practice आइडिया लग जाएगा. ये हो गया AR की पावर 7, एक कम हो जाता है. ये फॉर्मूला बस क्विकली माइंड में ले आइए nth टर्म का. और R is already given to me as 2. So of course this will give me the value of A. What is 2 power 7? 2 power 5 64 2 सा हो जाएगा ये. So 128. तो बस सॉल्व कर लीजिए. I will get the value of A. और आपको निकालना क्या था? 12th टर्म का मतलब AR की पावर 11. Both the values are with me. Substitute and your answer. Yes, check it out. थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं. प्लीज. If 5th, 8th and 11th term of GP are P, Q and S respectively. 5th term P, 8th term Q, 11th term S. ये गिवन है. You are to show this result. So ये कॉमन चीज है. आप स्टार्टिंग में कहेंगे लेट द जीपी बी AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन. तो A5 का मतलब क्या हो गया? AR पावर 4, दैट इज P. सिमिलरली AR पावर 7, दैट इज Q. AR power 10, that is S. So once I have these values, let me now consider LHS. जो प्रूव करना है. Q square means AR 7, ये Q निकाल दिया था, इसका स्क्वायर. और ये आ गया A square R power 14. Similarly, you will now get RHS P into S, P की value into S की value. So that's very simple thing.
one can easily note a square, base same, power add हो गई. So from fourth and fifth comparison, the result is proved. Any doubt to anyone? So we already have considered such questions. Which term of the AP जो अभी हमने 1/√3 वाला करा था, all the parts are exactly similar. For what value of x these numbers are in GP? तो आप चेक करिए, ये एक रूल की तरह, if A, B, C are three numbers and if they are in GP, GP में होने का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशो सेम हो गया, तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म शुड इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, और क्रॉस मल्टीप्लाई विल गिव मी दिस एज अ रूल. तो ये स्टैंडर्ड रूल की तरह याद हो जाता है. इफ थ्री टर्म्स आर ABC, square of the middle if it is equal to the product of first and third, right? So if this idea is clear, so if this is A, this is B and this is C, ये GP में कब होंगे? when B square is equal to A into C, that's it. और x square is equal to, one can check it out, cancel हो रहा है, simply 1, and x is plus minus 1. Do not forget the negative value. नेक्स्ट बात करी गई है अबाउट दी सम. तो आपको याद दिलवा देता हूं, इफ द जीपी इज a plus AR plus AR square up to AR power n minus 1, the sum to n terms Sn, this is given by a into r power n minus 1 over r minus 1. Whenever r is greater than 1, this is a into 1 minus r power n upon 1 minus r whenever r is less than 1. And at the same time, I also explained it hardly matters even if I do not consider them as a separate formulas. I learn, say, this formula only without any condition, or the second one, even if r is less than 1 or greater than 1, same formula can be easily used, because you can always take negative common from the numerator and denominator, so that will cancelled out और फार्मूला यही मिल जाएगा आपको जो नीचे दिया है. तो दिस इज the formula which is only required to learn. चलिए चेक करते हैं 7th क्वेश्चन. सबसे पहले एक डेसिमल वाला ले रहा हूं. आप चेक करिए, गिवन सीक्वेंस इज, जो ये बन रही है, इन्होंने बता दिया है कि ये जीपी है, नहीं तो आपको कई बार अपने आप भी ऑब्जर्व करना रहेगा. सो 20 टर्म्स तक सम निकालना है. सो वन कैन इजीली नोट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो क्या रही है.
सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 15 सिर्फ न्यूमरेटर को अगर मैं ध्यान से देखूं वो ये था, और ये दे देगा डिनोमिनेटर, दो जीरो कैंसल। सो देयर आर मल्टीपल वेज, अगर आप इसको डायरेक्ट सोच पा रहे हैं, इस तरह से कर पा रहे हैं, और मैं क्या कर सकता था, ये 6 क्लास की बात हो रही है, इस 5 के बाद 0 लगा दो, तो डेसिमल के बाद इसमें भी ऊपर 3 प्लेसेस, नीचे भी 3 प्लेसेस, तो 15/150, that is again 1/10. So whichever way you are convenient, you are always free to use that. करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब आप चेक करिए, ए मेरे पास है, आर है, एंड एन भी मुझे गिवन है, सम टू 20 टर्म्स बताना है, तो देयरफॉर S20 विल बी गिवन बाय, सी दी आर इज लेस देन 1, ये 1/10 आया है, तो अगर मुझे ऑलरेडी सिंपल ऑब्जर्वेशन से याद रहा कि आर तो लेस देन 1 है, तो लेट मी प्रेफर दिस फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर, और आई कैन राइट आर एज 0.1 ऑल्सो, ठीक है, वो डेसिमल में है क्वेश्चन, तो डेसिमल की टर्म्स में ही मैं लिख देता हूं, लाइक दिस, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। Now this is a very huge value, अगर मैं कैलकुलेशन में जाऊं तो आप यहाँ क्या लॉजिक लगाएंगे, ये चलो 0.15, 1 माइनस 0.1 की पावर 20, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस एट ऑल, क्योंकि ये पॉइंट 0000 करके 20 टाइम्स वैसे आ जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट दैट इसे और इसे सॉल्व कर लीजिए और आंसर इसी टर्म्स में आप छोड़ देंगे। सो पावर वाली टर्म क्योंकि लार्ज इस तरह की वैल्यू आ रही है, यू कैन लीव दैट एज इट इज। Similarly, you can check out for the other questions. Do I need to solve any of the part? 8, 9, 10 बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Try out in your homework or doubt है, you can always ask. Consider this question. Evaluate this value. समीशन का मतलब क्या होता है, ये आपने स्टैट्स में स्टडी किया है इस नोटेशन को इन क्लास 10th। तो समीशन में क्या होता है, ये है k फ्रॉम 1 to 11, इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, और 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाना है, 11 तक। तो इफ आई कंसिडर k इक्वल टू 1, k को 1 रखो जरा यहाँ, तो 2 प्लस 3 की पावर 1, ये पहली टर्म आ जाएगी, प्लस समीशन का मतलब प्लस करना होता है। अब k की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट आ गई, k इज 2, k को 2 रख दो, तो ये तो एज इट इज चल ही रहा था, अब k की जगह 2 रख दिया। नेक्स्ट क्या आएगा, व्हेन k इज 3, एंड सो ऑन, कब तक जाना है, व्हेन इट इज 11, तो 2 प्लस 3 की पावर 11। नाउ थिंक लॉजिकली, ये सम मुझे निकालना है। देयर इज अ सिंपल सिमिट्री यू कैन ऑब्जर्व, 2
plus 2 plus 2. How many times 2 is added? Anyone? 11. One can check it out. 11 टर्म्स मैंने लिखी थी ये वाली यहाँ पर. तो 2 अगर 11 टाइम ऐड हुआ है इन सिंपल वर्ड, वो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. प्लस में क्या बचा? पहली टर्म से 3. नेक्स्ट इज 3 स्क्वायर. नेक्स्ट इज 3 क्यूब. एंड करते करते 3 की पावर 11. नोट दैट दिस इज योर वन सिंपल जीपी. ये एक जीपी आ चुकी है. A is 3, R is also 3, number of terms is 11. Use the direct formula. क्या था फॉर्मूला? A into R की पावर n minus 1 over R minus 1. What maximum I can do? नीचे 3 minus 1 को 2 लिख दिया. And this is my required answer. No LCM, no power to solve. 3 की पावर 11 is a huge number. मान लो ये पावर 4, 5, 6 तक अगर रहती हैं, you can always you solve that. Question for your homework. Already discussed the basic idea. पढ़ के देख लीजिए. Since the product is given, तो आप ये लेंगे टर्म्स. एंड टू इक्वेशंस वुड बी सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दिया है. सो मेन थिंग इज फ्रॉम द प्रोडक्ट यू कैन ऑब्जर्व आर से आर कैंसल. ए क्यूब इज 1 और ए आ जाएगा 1 एज अ रियल रूट. ए की वैल्यू आएगी 1 के इक्वल. बस अब आप ए की वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए. टेक द LCM. You will get a quadratic equation in R. Solve that. 2 रूट्स आएंगे. सो 2 केसेस बनने वाले हैं डिफरेंट, सो दैट पॉसिबली देयर विल बी 2 डिफरेंट आंसर्स. और आंसर्स भी देखो हमेशा इसमें किस तरह के आएंगे, इसका आंसर मुझे नहीं पता, बट द आइडिया इज मान लो आंसर आ गया 2, 4, 8. तो केस 2 से क्या आएगा? 8, 4, 2. That you can always observe. So it is essential to talk about both the answers. Do not reject any of one. ये ध्यान से सोचकर करना है. बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो. Adding 4. Okay, chalo, let's check everyone. How many terms? तो लेट्स से n टर्म्स, वो तो कॉमन आइडिया लग जाता है. जीपी है 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, और सम हो जाए 120. वैसे तो अगर आप लॉजिक की बात करें
नेक्स्ट टर्म 9 होगी, नेक्स्ट टर्म 27 होगी, नेक्स्ट टर्म 3 की पावर 4 कितना होता है 81। 81. आप इन्हीं का सम चेक कर लीजिए, इट इज एक्चुअली 120। तो 4 टर्म्स आर टू बी टेकन। तो यहीं पर अब लॉजिक की बात आती है कि ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप इस तरह से सोच रहे हैं, बट इन जनरल a इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया इन टर्म्स का। सो नीचे वाला जो 2 है वो RHS में आकर मल्टीप्लाई, सो दैट इज 2 इंटू 120 पे, ये सॉरी ये p की पावर n एंड माइनस 1, इस तरह से 3 इधर लाकर डिवाइड, कितना आ जाएगा ये 80। 3 की पावर n is 81। 81 can be written as 3 power 4 and your required answer. Either way, logic और the formula, यहाँ तो सम 120 दिया था, सिंपल दे दिया था। अगर बिगर वैल्यू होती देन ऑफ कोर्स आई मे नॉट बी एबल टू थिंक डायरेक्टली, तब तो फॉर्मूला यूज करना कंपल्शन हो जाता। Check out this question. The sum of first 3 terms of GP is 16 and sum of next 3 terms is 128. Find first term common ratio sum to n terms. आप चेक करिए, let the GP be A, AR, AR square, AR cube and so on. According to question आपको क्या कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन sum of first 3 terms is 16 and sum of next 3 terms, next 3 terms का मतलब AR क्यूब हो जाएगा ना, फोर्थ टर्म से शुरू होगा, फिर फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, ये भी मुझे गिवन है 128। बस अब आप, मैंने रीजन क्या था, एक लाइन क्यों छोड़ी थी, ए कॉमन एंड दिस इज 16 एज माय फर्स्ट इक्वेशन। यहां से अगर आप देखें ए आर क्यूब इज कॉमन और ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दिस इज 128। आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर कि ये कॉमन भी मैंने क्यों लेकर ऐसे लिखा होगा। कैन एनीवन सजेस्ट मी नाउ हाउ टू सॉल्व इट फर्दर, क्या करें इक्वेशन 1 और 2 का। तो 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू। ओके चलो और कुछ वे सोचिए, एनीवन। सर डिवाइड कर दे। परफेक्ट, डिवाइड दीज इक्वेशंस। जैसे एपी में हम सब्ट्रैक्ट करते थे, अगर जनरली आपको अपना एक्सपीरियंस सोचना, यहाँ डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड का मतलब बिगर अपॉन स्मॉलर कर देता हूं तो सेकंड अपॉन फर्स्ट कर देता हूं, इवन इट हार्डली मैटर, आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो एलएचएस डिवाइड कर दिए, तो जैसे किंशुक ने कहा था दैट इज ऑल्सो ओके, वो सेम चीज ही देने वाला है। तो एक की वैल्यू पुट करा, नहीं तो ये डिवाइड से ये कंप्लीट कैंसल, ए से ए कैंसल,
What is this? I think this is 8. एक बार ना 16 8 आ, yes 128 r क्यूब आ गया 8. ऑब्वियसली इससे r आ गया 2 के इक्वल. Once I have the value of r with me, you use it in equation 1. r की जगह 2 रख दीजिए, so ये 2 square 4 हो जाएगा, and this gives me the value of a as 16 by 7. फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन रेशियो आ गया, सम टू एन टर्म्स बस बच गया. एस एन का फॉर्मूला एन इंटू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1. सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज. आर माइनस 1 नीचे तो 1 ही आ गया. 16 by 7 times 2 powers n minus 1. Which is your required answer. So any doubt to anyone? Check this out, बहुत simple straightforward questions हैं. In your homework. Check out this question. We already have discussed a similar question. ये given है. जीपी डिफाइन कर देना, उससे ये आ जाएगा. क्या प्रूव करना है? एक्स वाई जेड आर इन जीपी. तो कंसिडर हम क्या करने वाले हैं? वाई स्क्वायर सेपरेटली एंड एक्स इंटू जेड का प्रोडक्ट. आई एम श्योर रीजन क्लियर है क्यों ऐसा करा, कि इससे ये आ गया एंड द प्रोडक्ट एक्स इंटू जेड इज बाउंड टू बी द गिविंग मी द सेम वैल्यू. ये दोनों सेम आ गए, मीन्स मैंने जस्टिफाई कर दिया स्क्वायर ऑफ द मिडल इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और दिस इम्प्लाई एक्स वाई जेड आर इन जीपी. This is what we wanted to prove. Check out this question, then we will have a small break. Yes,
find the sum to n terms of this sequence. Note carefully, क्या निकालना है? 8 plus 88 plus 888 and so on. A very important type of question. n terms का जनरलाइज करना है. नोट दी स्टेप्स केयरफुली. स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है. 8 कॉमन, 1, फिर नेक्स्ट टर्म से 11 आ जाएगा. ये तो बेसिक चीज है. एंड सो ऑन टू n टर्म्स जा रहे थे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. Why 9? It will be explained in the next step. 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आ जाएगा. Look at first term as 9. This is 10 minus 1. 99, 10 square minus 1. 100 minus 1 हो गया ना. और 999 is 1000 minus 1 and so on. So एक सिमेट्री बनाने के लिए ये आ गया. Combine like terms. First terms obviously एक साथ आ जाएंगी like this. 2 n terms. And if you note carefully, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और 1 plus 1 plus 1 and so on. ये आ गया है n times over here. This is your 1 GP. First term, कॉमन रेशियो चेक कर सकते हैं, वो भी 10 के इक्वल है. तो फार्मूला लगा देते हैं, a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस 1 जो है वो n टाइम्स ऐड हुआ है. 1 n टाइम्स ऐड होने का मतलब 1 इंटू n हो गया. ये नीचे 9 आ गया. टेक द LCM ऑल्सो. तो यहां माइनस 9n हो गया. ये वाला 9 बाहर लाकर मल्टीप्लाई और ओपन द ब्रैकेट इनसाइड. कंबाइन लाइक टर्म्स और एक सिमेट्री से लिख दीजिए. यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. So this gives us the sum to n terms. In fact, अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ 88 और इसकी जगह लेट से 555 555 एंड सो ऑन होता, तो सिर्फ फर्क कहाँ आता? यहाँ 8 की जगह 5 आ जाता. ये वैल्यू बिल्कुल सेम रहती. Before we'll have a break for 5 minutes, a quick question. What is the sum for the first two terms? Means मैंने बात करी है when n is 2. What is the answer? What is the sum of first two terms here?
Anyone? So 96. How? So 88 plus 8. Yes. So आई एम श्योर अगर कोई सॉल्व कर भी रहा होगा तो n को 2 सोचकर यहाँ फॉर्मूला में अगर आपने पुट करना शुरू कर दिया तो n को 2 रखा, 10 क्यूब 1000, फिर 9 इंटू 2 18, और फिर इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, द आंसर शुड कम आउट टू बी 96। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म 8 था, नेक्स्ट टर्म 88 था। तो अप्लाई द लॉजिक ऑल्सो। हर बार डायरेक्ट फॉर्मूला या एन को पुट करके कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे। वन नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, राइट? तो आंसर इज 96। अब अगर मैं एन को 3 कह देता तब तो कैलकुलेशन और टफ थी, बट इन दैट केस मुझे सिर्फ 8 प्लस 88 प्लस 888 करना होता। I hope the idea is clear. Please make a note of it. Important type of question है। And mark your attendance, but still you will be in a classroom. We will have a break for 5 minutes. कंप्लीट मार्किंग होगी तो ये नहीं कि आप इसके बाद लीव कर रहे हैं। बी हेयर ओनली and join, or in case you want to leave, join after 4 minutes, but be here, that is suggested. I'll be now on mute.
Okay, let's begin now. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर वो जो एक्टिविटी फाइल थी उसमें से एक डाउट था। हाँ बोलो। एक्चुअली वहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ बने हुए थे उसके अंदर cos x का ग्राफ में मेरे को थोड़ा सा पूछना था। आप अलग से मेरे को कितनी बार मैंने पहले भी कहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है मैथ्स का, वो पर्पस क्या है उसका, आप उस पे वो डाउट भेज दो इमेज क्लिक करके, ठीक है? आई विल रिस्पॉन्ड। ओके सर। ठीक है, क्या डाउट है बस उसमें बता देना, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट वे। चेक इट आउट, ये 19th है, 20th सिमिलर क्वेश्चन है और कॉमन सेंस से आप इजीली कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? से 19 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ किसका? प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ these सीक्वेंसेस। मतलब बेसिकली यू नीड टू फाइंड द सम। कौन सा सम? प्रोडक्ट ऑफ इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म। सो इट इज मोर ऑफ द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड फोर्थ टर्म, फिफ्थ एंड फिफ्थ टर्म। राइट, यू कैन फाइंड दिस सम डायरेक्टली ऑब्वियसली, बट यहाँ ये एक्सपेक्ट शायद कर रहे हैं कि आप सिंपल जीपी का फॉर्मूला लगाएं, तो यू कैन चेक इट आउट कि आपकी सीक्वेंस ये बन गई है। हेयर फर्स्ट टर्म 256, कॉमन रेशियो अगर आप ध्यान से देखें 1/2 है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 5। So you can directly apply the formula for sum to 5 terms. चलिए प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, सोचिए, लैंग्वेज को समझिए। Find 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than fourth by 18. So let the numbers be. क्या लेंगे? सिंपल, जीपी है ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। आ गए 4 नंबर। अब क्या करें? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन दी फर्स्ट टर्म बाय 9। ऑब्वियसली मैंने आर ग्रेटर देन 1 एज्यूम किया होगा। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। तो 2 कंडीशंस हैं, इसलिए अभी हम ये शायद नहीं सोच पाए कि आर ग्रेटर देन 1 होगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव है। आर दीज 2 कंडीशंस क्लियर? रीड द इंग्लिश लैंग्वेज और उसको कॉम्प्रिहेंशन से समझिए। बस अब क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन ए कॉमन,
सेकेंड इक्वेशन ए आर कॉमन, let me divide these two equations. आप ऊपर वाली इक्वेशन में से माइनस कॉमन भी निकाल दो, इक्वेशन 4 में से माइनस कॉमन निकाल दिया, तो LHS LHS RHS RHS डिवाइड हो गए। ए से तो चेक करिए, फाइनली R इज -2, तो इसलिए जो लग रहा था, मैंने जो एज्यूम किया था R ग्रेटर देन 1, वो क्लियर हो गया कि वो ऐसे हम नहीं एज्यूम कर सकते, क्योंकि सेकंड कंडीशन से आइडिया लग गया था कि जब सेकंड टर्म ग्रेटर है फोर्थ टर्म से, तो दिस इज नॉट देन पॉसिबल। एनी डाउट टू एनीवन? चेक दिस आउट। एक बार अगर R की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर से 3, A मिल जाएगा, A एंड R आ गए, आई कैन गेट ऑल दी 4 टर्म्स। बस ये इक्वेशंस जो बनाई हैं वो स्टार्टिंग में आना इंपॉर्टेंट है। So further complete in your homework. Check out this question. If pth, qth and rth term of GP are ABC respectively. अब ये हो सकता है एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने फ्लो के हिसाब से किया है, तो जीपी के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। तो pth टर्म इज ए, qth टर्म इज बी, rth टर्म इज सी। यू आर टू प्रूव दिस रिजल्ट। सबसे पहली बात, let the GP is A, AR, or note it carefully, I am choosing the capital A and capital R, क्योंकि small a and small r ऑलरेडी यूज हो चुके हैं क्वेश्चन में। तो pth टर्म का मतलब AR P-1, नेक्स्ट qth टर्म क्या होगी, AR Q-1, एंड rth टर्म का मतलब AR और ये पावर R-1, that is C. So the most important steps of the questions are done. अब जो हमें प्रूव करना है, लेट मी कंसीडर LHS, and since I already have got the value of A, B and C, आप वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। तो A की वैल्यू और इस पूरे की पावर है Q-R। सिमिलरली
replace b and the power is r minus p. C is r minus 1 and power is q minus p minus q. बस इसके बाद तो ये a की पावर q माइनस आर और r की पावर, बहुत ध्यान से, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये अभी सिर्फ फर्स्ट टर्म मैंने लिखी है सिंप्लीफाई करके। विच बेसिक रूल क्लास 7th में किया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, इस तरह से पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सर आपने जब ए बी सी की वैल्यूज डाली है तब सी की वैल्यू में आपने पी माइनस आर को मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू कहाँ कह रहे हो आप, किस स्टेप में? सर सेकेंड स्टेप ऑफ एल एच एस, हाँ, सी की पावर पी माइनस क्यू है, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी। अच्छा हाँ ठीक है, या यहां पर ये पावर p माइनस क्यू है। फाइन, दिस इज q आएगा, ठीक है। बस इसके बाद एज यूजुअल a की पावर r माइनस पी इंटू r के साथ आ जाएगा q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। देखने में ही ये कैलकुलेटिव है बट इट इज नाउ वेरी सिंपल। और r की पावर ये आ गया, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड और ये आपस में मल्टीप्लाई थे, तो a को मैंने एक साथ कर दिया और a की पावर्स ऐड करते चलो। ये फिर सेकंड से आ गया r माइनस पी और थर्ड से आ गया p माइनस आर। ऐसे ही r की पावर अगर आप ध्यान से देखें, सो दे विल गेट एडेड लाइक दिस, and open the bracket and simplify। a की पावर 0, r की पावर 0, so I have skipped one step, पर वो यही आएगा, n equal to 1, any number power 0 is 1 and hence this is your RHS proved। So please make a note of it। Check out this question। और चलो एनफ फॉर द डे, अब इसमें से मैं ये नहीं लेता हूँ। आई वॉन्ट टू ओपन द क्लासरूम नाउ। एक बार उसमें ध्यान से कुछ चीजें देखनी है। शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन।
So this is your class, and when I check out your work activity file, which was due on 31st of August, only 8 has attached the file. Aarti, Akshat, Anisha, Diksha, Jia, Kinshuk, Mridul, and Ria. And what about the other students? So these students haven't done anything. मार्क्स सभी को चाहिए, काम नहीं करेंगे. This is highly unacceptable. Please remember this. So I have a complete record, everything आपके सामने ही है. किसी भी स्टूडेंट के लिए मैं आपको ये भी चलो दिखा देता हूँ. I go to any student और उसका स्टूडेंट का क्या काम कब मिसिंग है, क्या असाइन हुआ, किया नहीं किया, एवरी डिटेल इज हेयर. सो पिक एनी स्टूडेंट, उसका कितना काम रहा, नहीं किया, हर एक चीज आराम से सामने यहाँ पर आए. अब किसने कितना असाइन करा, टर्न इन किया, तो यू कैन सी दैट. So that way you have to be very very particular and careful about this. CBSE ये मांगता है कि प्रूफ होने चाहिए. तो अगर किसी के कम नंबर हैं, किसी के ज़्यादा हैं, तो वो कहाँ से हैं, वो यहाँ से हैं. यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा. Any doubt to anyone? No, sir. So please do it by today itself. I am just doing one thing. Due date was 31st August. I am extending this date to 6th September. After that, the link will be closed. 6th September. And remember, marks हैं इसके, आप अभी नहीं समझ रहे हैं इस चीज को. So the due date is extended, but इसके बाद अभी extend नहीं होगी. So please complete your work. So you have a simple idea. There is this simple PDF which is shared with you. आपको उसमें से half of the portion एक तरह से करना है. So this is your one activity. Activity 1 इसी order में जैसे ये किया. And this all things are discussed in a regular classroom. अगर आप ध्यान से सोचेंगे, everything is discussed. उसी को सिर्फ लिखने को कहा है. Second one, number of squares and rectangles, it is discussed. पढ़ के भी समझ आ जाता है, बहुत सिंपल चीजें हैं. कहीं भी डाउट आए, you can always ask. और यहाँ नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की जब बात करी है इस तरह के डायग्राम्स में, रिमेंबर वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो वन फॉर्मूला इज गिवन एंड इन दैट फॉर्मूला हम सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज कर रहे हैं. दिस इज द फॉर्मूला. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम रिलेशंस एंड फंक्शंस में स्टडी कर चुके हैं. सिर्फ उस आइडिया को यहाँ यूज करना है and you will have the answers. आपको तो अभी कॉपी ही करना है, बट at the same time करके देखिए, आगे सब कंप्लीट इसको सोचिए. Then verification using the formula and the direct calculation is shown. और next n is equal to 5. अब यहाँ 48 triangles काउंट करना not so easy, but using the formula you will get the answer so quickly. Followed by the n factorial based. So इसमें भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए. n फैक्टोरियल होता क्या है, दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हेयर. तो अगर मैं बात करता हूँ 2 फैक्टोरियल,
it is 1 into 2. 3 factorial 1 into 2 into 3. 4 factorial, ये नोटेशन है बस, 1 into 2 into 3 into 4. उन्हें लिख दिया प्रॉपर इस तरह से. ये तो कुछ वैल्यूज कैलकुलेटर से लिखी हैं स्टूडेंट ने, और अब इसके ट्रेलिंग जीरोस या नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड निकाले. यहाँ तो एक भी नहीं है लास्ट में, बट यहाँ 1 0, 6 फैक्टोरियल में 1 0, 7 फैक्टोरियल में एंड में देखो वो एक ही जीरो है. बट एज आई कम टू 10 फैक्टोरियल इट कंटेन 2 zeros. 11 फैक्टोरियल 2 zeros. करते करते जैसे ही मैं सीधा आया 15 फैक्टोरियल, इसमें 3 zeros आ जाते हैं. तो why and how come zeros are coming? क्लास 4th या 5th का कंसेप्ट यूज हुआ है, बट इसमें हमने एक फार्मूला अप्लाई करा था. तो फार्मूला से आप इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो वन क्वेश्चन इज मिसिंग जो स्टूडेंट ने यहाँ अटेम्प्ट नहीं करा. क्वेश्चन इसके बाद सिर्फ ये है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल, एंड देन फॉलोड बाय एक्टिविटी 5. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की बात है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन का बेसिक आइडिया लिया गया है. राइट, तो दैट वे ये वाले ग्राफ्स आपको क्लियर हो जाएंगे. इसमें अभी कौन डाउट पूछ रहा था, यू कैन आस्क, क्योंकि ओपन है सामने. यस सर. बताइए. cos x 2 plus cos x का जो था सर, इससे नीचे वाला ग्राफ cos x plus 1. हाँ सर इसमें 0 मतलब 0 to 2 होगा. नो आपको 0,2 पे शिफ्ट करना होगा, 0,1 के ऊपर. बेसिक आइडिया इज आप इसे क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, ये है आपका, एक मिनट, इस माई पेन विल वर्क ओवर हेयर, वो इस पे अब देखना पड़ेगा. आई डोंट थिंक सो वो यहाँ वर्क करेगा. एनीवे आप y इक्वल टू cos x प्लस 1 है, तो 1 जो है LHS में ले आए वो क्या दे देगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस 0. x को लिख दिया x माइनस 0, तो वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0,1. x वाले लीनियर को 0 कर दिया, y वाले लीनियर को 0 कर दिया. तो 0,1 के ऊपर एक्चुअल में वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा मेरे ग्राफ का. ये ग्राफ में थोड़ी गलती है, आई जस्ट ऑब्जर्व दैट. ये वाला इसने नॉर्मल ग्राफ बना दिया है, ये गलत है ये वाला ग्राफ. आई विल ग्राफ इट, इसको करेक्ट करके मैं भेज दूंगा. तो ये इसका वर्टेक्स ही 0,1 से शुरू होना है. तो अकॉर्डिंगली देयर विल बी अ सर्टेन चेंज, क्योंकि दोनों जगह ये 0 और 0 लिखा हुआ है. सो दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग हेयर. करेक्ट ग्राफ में इसका भेज दूंगा आपको, y इक्वल टू cos x प्लस 1 का. तो प्लीज डू कंप्लीट योर वर्क एट द अर्लीएस्ट. या एड दैट क्वेश्चन 100 फैक्टोरियल वाला. Now you can leave the class after marking your attendance, everyone. Mark your attendance and then leave the class. Thank you, sir. Okay. Thank you Welcome. sir. Bye sir. Thank you. Okay. Bye.